جو بنا میرا چشتی حرم اشرف کا حرم ہے. لیکن جینے کی طلب اتنی ہے اس کے اندر میں کہ جو مولانا صاحب آتے ہیں خاپا بالخیر کی بات نہیں کرتے ہو. وہ بات کیا کرتا ہے حضرت سانس پھول رہا ہے, کوئی دوائی ہے, کوئی اچھا آپ تو پورے ہندوستان گھومتے ہیں, کوئی ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں, آپ خود ڈاکٹر ہیں حضرت, ہم کو کوئی دوائی دے دیجئے, بہت سانس پھول رہا ہے. یہ وہ بولتا ہے حضرت یہ گھٹنا میں بہت درد ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی دوائی واحد تو دے دیجئے. حضرت رات روٹی نہیں پچ رہی ہے, پہلے تو 10 روٹی کھا لیتے تھے, اب جو 2 روٹی کھاتے ہیں تو الٹی ہونے لگتی ہے, حضرت کوئی دوائی وائی ہو تو دے دیجئے. یہ بتائیے, اس پر افسوس کیجئے. یہ 95 سال کا بوڑھا یہ جینے کے لیے مولانا مولوی پیر صاحب سے دوائی ڈھونڈ رہا ہے. نہ قبر کا چرچا ہے, نہ محشر کا چرچا ہے, نہ پلسرات کا چرچا ہے کہ پلسرات پہ گزرنا ہوگا, وہ پل جس پہ سب کو گزرنا ہوگا, جو جہنم کے اوپر میں پل ہے, جو پال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے, اسی دھاردار تلوار پہ چل کے آگے جنت ہے. بہت سے لوگ 1 قدم چلیں گے جہنم میں گر جائیں گے, بہت سے لوگ 10 قدم چلیں گے جہنم میں گر جائیں گے, بہت سے لوگ 50 قدم چلیں گے جہنم کی آگ میں گر جائیں گے. اور وہ جو پل صراط پار کرے گا تلوار سے زیادہ تیز, بال سے زیادہ باریک, اور 500 سال کی مسافت کے برابر کا پل ہے. 5 دن نہیں, 5 مہینہ نہیں, 5 گھنٹے والا پل اگر ہو تو یہاں سے لکھنؤ تک کا پل ہو جائے گا. یہاں سے لکھنؤ تک آدمی دوڑا کے بائک لے کے چلا جائے گا. 500 سال. اللہ صبر. یہی تو فرق ہے. نیتا دنیا کی بات کرتا ہے, دنیا دار انجینئر ڈاکٹر پروفیسر صرف کھانے پینے مال متا کی بات کرتے ہیں, اور ایک عالم دین آخرت کی بات کرتا ہے, وہ جنت کی بات کرتا ہے, جسے پلسرات سے گزرنا ہے, جسے جہنم کے اوپر میں اس پل سے گزرنا ہے. 500 سال کی مسافت کے برابر ہے وہ پل, اس کے بعد ہی ہے جنت, وہاں جانا ہے. کبھی یہ 95 سال کا بوڑھا اس پلسرات کی بات نہیں کرتا ہے کہ حضور اس پل پہ کیسے پار کریں گے, کوئی نسخہ بتائیے, کوئی سامان بتائیے, کوئی وظیفہ بتائیے, کیسے اس پلسرات سے گزرنا ہوگا. گزرنا تو سب کو ہوگا, جیسے موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے, پلسرات سے بھی سب کو گزرنا ہے. حضور کوئی نسخہ بتا دیجیے تاکہ آسانی سے گزر جائے. قبر میں رہنا ہے 5000 سال, قیامت قائم نہیں ہوگی ابھی, کل قیامت آ سکتی ہے مگر آئی نہیں. جو لوگ 10,000 سال پہلے مر گئے وہ 10,000 سال سے قبر میں سناٹے میں ہے, مٹی میں ہے, عالمی برزخ میں ہے. قیامت کل بھی قائم ہو سکتی ہے لیکن 50,000 سال کے بعد بھی ہو سکتی ہے. تو قبر کی منزل ہزاروں سال, جہاں قیامت کا ایک دن 50,000 سال, اور جہاں پلسرات سے پار کرنا ہے 500 سال کی مسافت کے برابر. نیکی بدی تولی جائے گی ترازو پہ, ایک طرف نیکی ایک طرف بدی. نیکی ہے 1 لاکھ, اب برائی ہے 50,000 کروڑ. چونکہ سجدہ ہم کرتے ہیں دن میں جمعہ, اور یہاں گناہ کرتے ہیں ایک دن میں 1000 بار. غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے. میں مزہ لے کے کرتا ہوں, جھوٹ بولنا حرام ہے, روزی اس سے گھٹتی ہے, منہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے, اور آج کل 90% لوگوں کے منہ سے بدبو آتی ہے, اس کے بدن سے بدبو آتی ہے, اس کی بولی سے بدبو آتی ہے. یقین نہیں آئے تو آج کے بعد سے آپ تجربہ کرنے لگی, جس کے پاس بیٹھے اس کے بدن سے بدبو آئے, اس کے منہ سے بدبو آئے گا, کیونکہ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بدبو آتی ہے. جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بدبو آتی ہے. جو غیبت کرتا ہے اس کے منہ سے پخنے کی طرح بدبو آتی ہے. جو میری ماں بہن بیٹیاں ساس کی غیبت کر رہی ہے, فون پہ اپنی ماں سے فون کر رہی ہے, یہ بہت انتہائی گھٹیا عورت ہم کو مل گئی. امی یہ ہمیشہ گالی دیتی ہے, ہمیشہ ٹارچر کرتی رہتی ہے. میں 1000 کچھ کروں, یہ اپنی بیٹی ماننے کو تیار نہیں ہے, مجھ کو یہاں رہنے کا من نہیں کر رہا ہے. وہاں سے ماں کیا بولتی ہے فون سے کہ تم ڈرنا ورنا مت, وہ ایک بات بولے تو 50 بات بولنا اس, وہ تب کہ مت رہنا ہے. اب یہاں ساس بہو میں جنگ ہوئی, شوہر نے طلاق دے دیا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہے وہ ماں جس ماں نے اپنی بیٹی کو صبر کرنا نہیں سکھایا, جس ماں نے اپنی بیٹی کو ساس سے لڑنا سکھایا ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ ہو گئی طلاق. یہاں تو کنواری 18 سال کی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے, 50 مہمان آئے چلے گئے, شادی نہیں ہو رہی. اور جن کی شادی ہو چکی ہے, جو شوہر کے ساتھ 2 سال رہ چکی ہے, ایک بچے کی ماں ہو چکی ہے, اس کو جو شوہر طلاق دے دے تو کون اس کو نکاح کا پیغام دے گا؟ اس لیے میری ماں بہن بیٹی, جب تیری بیٹی وہاں سے فون کر کے ساس کی شکایت کرے, ان کو کہنا خبردار,
अगर मैं तेरी माँ तुझको 50 गाली दूं तो तू उसको बुरा नहीं मानती है, ये जान ले कि वो तेरे शौहर की माँ है। वो 1000 कुछ बोले तुम उसका जवाब मत देना, वो बोल बोल के थक जाएगी, एक दिन तेरा सब्र उस पे हावी हो जाएगा, वो अपना दिल तेरे पाँव के नीचे बिछा देगी। जब वो देखेगी मैं गाली देती हूँ ये सब्र करती है, मैं इनको मारने दौड़ती हूँ ये सब्र करती है, उनके सीने में है दिल। जब सब्र करेगी तो जो तलवार से जो उसके दिल को मुसख्खर न कर सके वो तेरा सब्र उसके सीने को तोड़ देगा। एक दिन आएगा कि वो अपना दिल तेरे पांव के नीचे बिछा देगा। घर को आबाद करने का बेहतर तरीका है कि एक माँ अपनी बेटी को फोन पे बोले शौहर का एहतराम बताए, शौहर का एहतराम बताए, शौहर की माँ का एहतराम बताए कि शौहर तुम्हारा सरताज है और तुम्हारे मालिक मुख्तार की माँ है, वो मालिक मुख्तार की माँ है। अपने शौहर की मोहब्बत में शौहर की माँ से प्यार करना, वो मुझसे ज्यादा उनको सम्मान दे। रानी बन के तू रहेगी, अब तू मेरे घर में नहीं रहेगी, अगर लौट के आ गई तो खानदान की नाक कट जाएगी कि उसकी लड़की को तलाक हो गया, वो बेवा हो गई, फिर तुम दोबारा लौट के आई अपने भाई के लिए बोझ बन जाएगी। तो तुम आज सुहागन है उसी शौहर की वजह से, जब तक वो जिंदा है तो बेवा नहीं सुहागन है, जब सुहागन है वो उसकी वजह से, तो उसकी माँ है, वो शौहर की माँ है, शौहर की कद्र और शौहर की माँ है, वो उसकी इज्जत कर। मगर नहीं, 1 घंटे तक बेटी गीबत करती रहती है, एक बार भी माँ उसको समझाती नहीं है गीबत करना हराम है, और अल-गीबतु अशद्दु मिन ज़िना, गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त है। ए काला कमला का यार बड़े ये नाच है, टमाटोंगी हटलावा है क्या ये? क्या सोचा था? जलसे में क्यों आया था? कोई रंडी आके नाचेगी इसलिए आया था? रंडी नाच नहीं रही है, भाग रहा है। जलसे का मतलब है कि वहां दीन सिखाया जाएगा, जलसे का मतलब है नबी की बात बोली जाएगी, जलसे का मतलब है हदीस बोली जाएगी, जलसे का मतलब है कुरान बोला जाएगा, जलसे का मतलब है जिंदगी संवारने और सजाने की बात की जाएगी, जलसे का मतलब है समाज की बुराइयों को बयान करके उसकी इस्लाह की कोशिश की जाएगी, जलसे का मतलब है कि बीमारी की तशखीस होगी, उसका इलाज किया जाएगा। तब जलसा जब तुम जलसा में आया ही है, हदीस सुनने के लिए भागता क्यों है? जब आया ही है कुरान सुनने के लिए भागता क्यों है? मैं कोई लतीफा बोल रहा हूँ, मैं कोई कहानी बोल रहा हूँ, मैं कोई किस्सा बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, मैं हदीस बोलता हूँ, मैं कुरान बोलता हूँ, हदीस कुरान का जो मफहूम होता है वो बोलता हूँ। फिर तुम भागता क्यों है? भागो मत, जो ये जन्नत से भागेगा तो कहाँ जाएगा? जहन्नम ही जाएगा, जहन्नम ही जाएगा। जन्नत से भागो मत, जन्नत में रहो, जन्नत में रहो, यहाँ बयान सुनते रहो, आंसू बहाते रहो, रोते रहो, सीने का घमंड दूर करते रहो। आज घमंड समाज को जीने की जगह बना के रखा है। घमंड ने समाज में आग लगा दी है, घमंड समाज को छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। अमीर गरीब से चिढ़ रहा है, गरीब अमीर से चिढ़ रहा है, पड़ोसी से चिढ़ रहा है। तुम जंगल में जाके घर बना ले, नहीं जी पाएगा। जंगल में कुत्ता बन के, शेर बन के, बिल्ली बन के, भालू बन के रहना पड़ेगा। इंसान को इंसान से राहत मिलती है, तो हमारे लिए इंसानी समाज है ये। अब यहाँ जो तू पड़ोसी से लड़ेगा, आगे वाले से लड़ेगा, सास से लड़ेगा, बहू से लड़ेगा, अपनी बीवी से लड़ेगा, अपनी पड़ोस से लड़ेगा, तो फिर कहाँ जाएगा? इसीलिए आज हम शौहर हैं, हम घर में रात में आए, सोए, सुबह चले गए, लेकिन 24 घंटे एक बहू और सास को एक जगह रहना है। 24 घंटे एक भाभी और ननद को एक जगह रहना है। उसी में दुश्मनी है, उसी में तरार है। इसलिए मर्दों के मुकाबले में औरतें ज्यादा बीमार पड़ती है, मर्दों के मुकाबले में औरतों को ज्यादा हार्ट की बीमारी है, मर्द के मुकाबले में औरतों को ज्यादा शुगर की बीमारी है, मर्द के मुकाबले में औरतों का ब्रेन हेमरेज ज्यादा हो रहा है, मर्द के मुकाबले में औरतों को फेफड़े का मर्ज ज्यादा हो रहा है, मर्द के मुकाबले में घुटने और टखने का दर्द औरतों को ज्यादा हो रहा है, मर्द के मुकाबले में औरतों का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों? इसलिए कि हर वक्त वो तनाव में रहती है, हर वक्त वो टेंशन में रहती है। हम तो घर में आए, शिकायत सुने बीवी की और चले गए काम पे। अब 8 घंटे बाहर है, बीवी अपने घर में है, टेंशन मुक्त है हम। लेकिन वहां तो 24 घंटे सास और बहू को एक आंगन में रहना है और एक दूसरे से बात नहीं करना है। वो जो टेंशन
टेंशन में बहू रहेगी, वो टेंशन में माँ रहेगी, सास रहेगी। वो सास क्या है? वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है। ये बहू क्या है? ये मेरी बीवी है। ये बीमार पड़ेगी तो पैसा मेरा खर्च होगा, माँ बीमार पड़ेगी तो पैसा मेरा ही खर्च होगा। और मैं बेटा मैं सोचता हूँ कि माँ भी खुश रहे और मेरी बीवी भी खुश रहे, इसलिए मैं बीवी के पास जाके कहता हूँ कि 500 रुपया तेरे लिए है। अब माँ के पास जाके चुपके से कहता हूँ कि 300 रुपया आपके लिए है। मगर इसके सामने मैं 300 दे दूं तो ये हार्ट अटैक कर जाएगी, ये हार्ट अटैक उसका हो जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि मैं माँ को तुमने आपने इतना दे दिया। इसलिए एक मर्द दोनों को औरत समझकर इनको भी कहता है कि तू ठीक है, अच्छी है, तू ये 1000 रुपए ले ले। फिर चुपके से माँ के पास जाता है, माँ आप बहुत अच्छी है, आपकी कोई गलती नहीं है, माशाल्लाह आप हमारी माँ है, आप काबिल एहतराम है, ये 1000 रुपए आप ले लें। ये लड़का दोनों को खुश रखना चाहता है, या दोनों मेरी निगरानी में, माँ को भी मैं खिलाता हूँ, बीवी को भी मैं खिलाता हूँ, बहन को भी मैं खिलाता हूँ, उनकी शादी होगी 2 साल के बाद मैं ही करवाऊंगा। लेकिन ये तीनों आपस में इतनी टूटी रहती है और घर इस कदर लड़ाई का अड्डा बना होता है कि माँ और बेटी दोनों एक साइड हो जाती है। और ये बाहर माँ बाप भाई बहन को छोड़ने वाली जो आई है वो हमारे घर में सिर्फ मेरी वजह से, मेरी माँ उसके खिलाफ साथ एक टाइम की तरह लड़ने लगती है, मेरी बहन उसका साथ दे देती है। ये बताएं अगर हमारी बीवी जहर खा के मर जाए उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार वही सास होगी, उसका जिम्मेदार वही मेरी बहन होगी, जो दोनों एक पार तरफदार होके एक आदमी जो माँ बहन भाई बाप सारा संसार छोड़कर मेरी वजह से मेरे घर में आई है। पैदा हुई बम्बई में, मैं पैदा हुआ प्रतापगढ़ में, वो बम्बई में मैंने उनको निकाह का प्रपोज किया, वो कबूल कर लिया। पैदाइशी वतन, पैदाइशी शहर, माँ बाप भाई बहन टोपी गाला सबको छोड़ करके वो प्रतापगढ़ के देहात में मेरे साथ जीने मरने की कसम खा के आ गई। तो अब उसको जो मेरी माँ बोलेगी मैं तुमको मार दूंगी, मेरी माँ बोलेगी मैं काट दूंगी, मेरी माँ बोलेगी मैं केरोसिन छुड़ा के जान दे दूंगी, मेरी माँ को चाहिए मेरा पैसा मगर उसको मेरी बीवी अच्छी नहीं लगती है। ये बता दीजिए कि एक अच्छा बेटा इस बीच में कैसे पिस के रह जाएगा? वह दोनों तो अपनी जगह रह जाएगी, ये खुद सब्र न करे तो जहर खा के मर जाएगा। इसका जिम्मेदार वही दोनों होंगे, एक बीवी एक माँ। इस्लाम सिखाता है कि तुम दोनों जब एक साथ रहती है तो रोजाना एक दूसरे को सलाम कर, एक दूसरे की गलती पे नजरअंदाज कर और दोनों एक साथ मिल बैठकर खुशगवार माहौल पैदा कर। तुम यहाँ खुश रहेगी, औलाद की और तेरे शौहर की कमाई में अल्लाह बरकत अता करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा डॉक्टर शहरयार साहब किबला। गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त है, चाहे सास की गीबत हो या बहू की गीबत हो, गीबत हराम है और ज़िना से ज्यादा सख्त है। अल-गीबत अशद्दु मिन अज़-ज़िना। हुजूर से पूछा गया सरकार कैसे गीबत सख्त है? मुस्तफा करम फरमाते हैं अल-ज़ानी यज़नी सुम्मा यतूब। ज़ानी ज़िना करता है फिर तौबा कर लेता है, गलती हो गई, पांव फिसल गया, नफ्स ने बहका दिया, उन्होंने शराब पी लिया, उन्होंने बदकारी कर ली, बाद में एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, एहसास हो गया गलत नहीं करूंगा, अब वह तौबा कर लिया, अल्लाह ताला माफ कर देगा, अल्लाह ताला माफ कर देगा। 10 साल शराब पिया, फिर उसके बाद सच्ची तौबा कर लिया, अल्लाह माफ कर देगा। 10 साल बदकारी की, फिर सच्ची तौबा कर लिया, दोबारा आंख उठा के नहीं देखा उस गुनाह को। सच्ची तौबा का मतलब है कि जिस तरह गाय के थन से दूध निकल जाए फिर वापस ना जाए, वो है सच्ची तौबा। चाहे वो सच्ची तौबा पिछले गुनाहों को मिटा देती है। 10 साल वो बदकारी किया, तौबा कर ले सच्ची, फिर दोबारा उस गुनाह को हाथ न लगाए, अल्लाह माफ कर देगा। मगर अगर आपने किसी मुसलमान की इज्जत खराब करने के लिए उसकी बुराई पीठ के पीछे बयान किया, जो एक ऐब है कि जो मेरे पास नहीं है, उसको अगर आपने बयान किया तो वो बहतान, गीबत से बड़ा गुनाह है, खतरनाक गुनाह है। बहतान इल्जाम लगाना गुनाह है, बुराई उसके पास है नहीं, खींच तोड़ के उसको बुराई साबित कर देगा। सनीमा हम देखते नहीं, लेकिन मेरा साथी हसद में वो बोले मैंने उनको देखा रात में सनीमा देखता है, रात पर मोबाइल में सनीमा देखता है, हालांकि मैं देखता नहीं। ये हो गया बहतान, ये हो गया बहतान, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। उसको बादशाह इस्लाम 80 कोड़े मारेंगे उसको, अगर यह साबित हो जाए कि वाकई उन्होंने बहतान लगाया है। इसीलिए अगर कोई सास ये बोलती है कि तुम रंडी माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह, तबाइफ का मतलब है कि जो 10 मर्दों के पास जाती है उसकी बीवी उस जुर्म से पाक है। उन्होंने बेचारी शादी से पहले शादी के बाद उन्होंने गुनाह नहीं किया, वो शौहर की अमानत है,
لیکن یہ دشمنی میں اس کو اس طرح کے جملے کہہ رہی ہے، بادشاہ اسلام رسی سے باندھ کے 80 کوڑے مارے گا اس کو، اس لیے خبردار وہی بات زبان سے نکالنا جو بات سچ، کبھی الزام مت لگانا اپنی ساس پہ، اپنی بہو پہ، اپنے سماج کی عورتوں پہ، اپنی نند، اپنے بھاؤج پہ، اپنے پڑوسی پہ، خبردار، ورنہ حضور نے کہا ہے کہ میں زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہوں۔ جہنم کا پیٹ بہت بڑا ہے، جنت میں 1 کروڑ میں 1 آدمی جنت جائے گا، جہنم میں تھوک کا تھوک آدمی جائے گا۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں تقریر کر رہے ہیں، جلسہ ہو رہا ہے، لوگ نمازی ہی نہیں بن رہے ہیں۔ نمازی بنے گا کیسے؟ جنت میں تو 1 آدمی جائے گا اور جہنم میں 1 کروڑ جائیں گے۔ اس لیے سچا کم ہے، جھوٹا زیادہ، نمازی کم ہے، بے نمازی زیادہ، عزتدار کم ہے، شرابی زیادہ، پرہیزگار کم ہے، زناکار زیادہ، نیک پرہیزگار کم، بولنے والے کم ہیں، غیبت چغلخوری کرنے والا زیادہ، اگر جلسے میں آنے والا کم ہے، ناچ دیکھنے والا زیادہ، عالم کی گفتگو سننے والا کم ہے، نیتا کا بھاشن سننے والا زیادہ، اور پھر قرآن پڑھنے والا کم ہے، اخبار پڑھنے والا زیادہ، نماز پڑھنے والا کم ہے، سنیما دیکھنے والا زیادہ۔ تو پریشان مت ہو جاؤ، جنت میں کروڑوں میں کوئی جائے گا۔